الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر سورہ فاتحہ کے حوالہ سے گزارشات چل رہی تھی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کی تفسیر اور تشریح آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا. اللہ رب کائنات شرح صدر فرمائے. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس خالق کے لیے، اس مالک کے لیے، اس رازق اور داتا کے لیے جو پورے جہان کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے. رب کا معنی بھی میں نے بیان کیا تھا کہ رب کے 3 معنی ہیں جو مین. ایک یہ کہ خالق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں. دوسرا معنی مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی کسی کی ملکیت نہیں، کسی کا اختیار نہیں، کسی کی حکومت نہیں. اختیارات، امر، حکومتیں اللہ کی چلتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. اور تیسرا مدبر، تدبیریں، چالیں، فکریں، سوچیں، تصرفات میرے اور آپ کے نہیں چلتے، پروردگار عالم کے تدبر اور تدبیریں چلتی ہیں. مدبر الامر ہوئی ہے، متصرف الامر ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی مدبر ہے نہ کوئی متصرف ہے. یہ رب کا معنی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق کنسیڈ کریں گے، شمار کریں گے، گنیں گے، شامل کریں گے، خالق ہونے میں شراکت داری دیں گے، تو ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے جو عقیدہ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. مالک کسی اور کو تصور کریں گے
کسی اور کو شمار کریں گے بھی، وہ بھی مالک ہے، وہ بھی مالک ہے، اس کی ملکیت میں اس نے جتنا حصہ اس کو دیا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کا امر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے۔ اگر ملکیت میں، اختیارات میں کسی کو شراکت دیں گے تو وہ معنی رب کا ہم نے تسلیم نہیں کیا جو رب نے بیان کیا ہے۔ تدبیریں، مدبر، متصرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر کے، پارٹنرشپ دے کے کہ یہ بھی مدبر ہے، یہ بھی متصرف ہے، اس کی بھی تدبیریں چلتی ہیں، اس کا بھی حکم چلتا ہے، اس کی بھی چالیں چلتی ہیں، اس کی سوچیں چلتی ہیں، جو یہ سوچتا ہے، جو یہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچ لیا، اس نے رب کا وہ معنی تسلیم نہیں کیا جو پروردگار نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، پروردگار بھی وہ، پالنہار بھی وہ، رب بھی وہ، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، متصرف بھی وہ، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اس رب کی تمام تعریفیں، اس رب کی تمام تعریفیں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جو رحمان نہیں، جو رحیم نہیں، وہ پروردگار نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم دو مختلف لفظ ہیں دیکھنے میں، لیکن ان دونوں کا مادہ ایک ہے، رحمت کا۔ ان دونوں کا مادہ ایک ہے، رحمت کا۔ ان دونوں کے اندر رحمت پائی جاتی ہے۔ ان دونوں صفات کے اندر، صفات باری تعالیٰ کے اندر رحمت کا ذکر ہے۔ اور قربان چاہیے رب کے انداز پر۔ اللہ رب کائنات نے سورہ فاتحہ کی ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین سے، فوراً دوسری آیت اللہ نے نازل کی الرحمن الرحیم۔ اب اگر ان دو آیات پر غور کریں تو ان کے درمیان ایک تعلق ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر معنی ترہیب ہے، یعنی انسان کو ڈرایا گیا ہے، خوف دلایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے۔ اللہ رب کائنات نے خطرے کی گھنٹی کو واضح کیا ہے کہ خالق، مالک، داتا، دستگیر، غوث اعظم، مدبر، متصرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو انسان جب یہ آیت پڑھتا ہے اس کے اندر ایک رعب پیدا ہوتا ہے، ایک دبدبہ پیدا ہوتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ رب کا ڈر، رب کا خوف اس کے دل میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرنا بھی نہیں ہے، رب اتنا سخت نہیں ہے، تیرا رب تو وہ ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ یہ تعلق ہے ان دونوں آیات کا کہ جہاں ترہیب کا ذکر ہوا، خوف اور ڈر کا اللہ رب کائنات نے ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ تیرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی شفقتیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی رحمتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں قال عیسیٰ علیہ السلام هو الرحمن رحمان الدنیا والآخرہ، کہ لفظ رحمان اس کا معنی بھی رحمت ہے، اور یہ رحمت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رحمان الدنیا والآخرہ، یہ رحمت میرے رب کی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ والرحیم رحیم الآخرہ، کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، میرا اور آپ کا حساب و کتاب کیا جائے گا، میرے اور آپ کے اعمال نامے کو تولا جائے گا، گنا جائے گا، میرے اور آپ کے گناہوں کی
गिनती की जाएगी, नेकियों की गिनती की जाएगी, उस वक़्त रब कायनात की तरफ से जो रहमत बरसेगी वो रहीम की रहमत होगी। दुनिया के अंदर आज भी रब की रहमत की बरखा बरसती है, वो रहमान के जुमरे में आती है कि दुनिया के अंदर जो रहमत बरस रही है वो रहमान की है। उसी रहमान की रहमत कल क़यामत के दिन रहमान के थ्रू भी बरसेगी, रहीम के माने में भी बरसेगी। क्या माना कि हुवर रहमान दुनिया वल आखिरा, दुनिया की रहमतें जितनी भी हैं वो भी रब की तरफ से हैं। कल क़यामत के दिन रब रहमान इन बंदों पर क़यामत के दिन भी रहम करेंगे रहमान के होने में। क्यों? मेरे रब की सिफत रहमान है, मेरे रब की सिफत रहमान है। दुनिया में भी मेरा रब रहमत कर रहा है, कल क़यामत के दिन भी मेरा रब रहमत करेगा। क्यों? अर्रहमान रहीम, परवरदिगार रहमान भी है, रहीम भी है। रब की रहमत का अंदाजा हो ही नहीं सकता। इमामुल अंबिया फरमाते हैं रब्बे कायनात ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। कितने? 100 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा रब ने दुनिया में रहमत का भेजा है, बकिया 99 हिस्से अल्लाह ने महफूज करके रखे हैं। कल क़यामत के दिन उन रहमत के हिस्सों को इस्तेमाल करके अपने गुनहगार बंदों को बख्श करके जन्नत में भेज देंगे। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि रब की रहमत का एक हिस्सा जो दुनिया में आया है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, कितनी रहमत करती है, कितनी शफकत करती है। मूजी जानवर भी है, वो भी अपने बच्चों से रहमत करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अपने बच्चों पर रहीम है। इंसान है तब जानवर है, तब दरिंदा है, तब परिंदा है, तब ये सारी रहमतें मेरे रब की रहमत का एक हिस्सा है जो मेरे रब ने दुनिया में भेजी है। बकिया 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हुए हैं। कल क़यामत के दिन उन 99 हिस्सों को इस्तेमाल करके मेरा रब मुझ पर भी आप पर भी इंशाअल्लाह रहमत करके जन्नत में भेजेंगे। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, बड़ी उम्दा हदीस मैंने जब पढ़ी, रब की रहमत और वुसअत का अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ यअलमुल काफिरु मा फिर रहमती मा कानता फिल जन्नती। अगर दुनिया का बदतरीन काफिर भी रब की रहमत का अंदाजा कर ले, जान ले, वो कुफ्र करता रहेगा, गुनाह करता रहेगा, मासियत करता रहेगा, जुर्म करता रहेगा, रब की नाफरमानी करता रहेगा, लेकिन उसको अगर पता चल जाए कि मेरा रब रहीम इतना है कि 99 हिस्से कल क़यामत के दिन तकसीम करेगा। रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया की ज़ुबान मुबारक से ये बयान करवाया है कि ऐ नबी आप कह दीजिए, काफिर भी कह देगा कि मुझे जन्नत से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। क्यों? मेरा परवरदिगार, मेरा पैदा करने वाला इतना रहीम है तो मुझे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है। लौ यअलमुल काफिरु मा फिर रहमती, अगर काफिर जान ले कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है तो वो भी कह उठेगा कि मेरा कुफ्र है, मेरी बदअकीदगी है, मेरा डिसबिलीफ है, ये सारी चीजें एक तरफ, रब की रहमत दूसरी तरफ है। रब मेरे कुफ्र को नहीं देखेगा, रब मुझे बख्श कर जन्नत में भेज देगा। रब की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसात वाली मेरे रब की रहमत। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जब इंसान रब से मांगता है, सवाल करता है, मेरा रब खुश होता है। इज़ा लम यसअल, जब इंसान रब से सवाल नहीं करता, मांगता नहीं है, रब से रहमत का सवाल नहीं करता, मग़फ़िरत का सवाल नहीं करता, रिज़्क़ की फराखी का सवाल नहीं करता, रब से मांगता नहीं, अल्लाह रब्बे कायनात ऐसे शख्स पर नाराज हो जाते हैं। हमारी दुनिया का क्या मामूल है, जिससे मांगे वो नाराज हो जाता है, मेरे पीछे पड़ गया है,
मेरा दामन ही नहीं छोड़ रहा, इसको पता चल गया है कि मेरे पास पैसे हैं, जान ही नहीं छोड़ रहा। मेरा रब कहता है जो बंदा मुझसे मांगता है मैं खुश होकर उसको देता हूं, जो नहीं मांगता मैं उससे नाराज हो जाता हूं। रब की रहमत, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे नबी आप कह दिए, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी में गुजार दी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस और नाउमीद ना हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मेरी रहमत तो इतनी है मैं सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता हूँ। एक दफा बंदा मांगे तो सही, सवाल तो करे, छड़ा माफ नहीं करता। रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में अपनी रहमत का जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं माफी तू मांग, बख्शिश तू मांग, गुनाहों की माफी तू मांग ले, मैं तेरे गुनाहों को माफ नहीं करता, उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूं। सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, नाफरमानियां करता रहा, अदावतें करता रहा, दुश्मनियां रखी, रब की नाफरमानियां की, जराइम किए, नदामत का एक अश्क बहाया, रब के सामने सर बसजूद हो गया, माफी मांग ली। मेरा रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता है कि मैं उस पर इतना राजी होता हूं, इतना राजी होता हूं, मैं उसके गुनाहों के सारे रजिस्टर माफ नहीं करता, उनको नेकियों में बदल देता हूं। आओ तो सही मेरे दर पे, मुझे राजी तो करो, मेरे सामने नदामत के अश्क बहाओ। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जिसको माफी मांगते हुए रोना नहीं आता, अल्लाह फरमाते हैं रोने वाली शक्ल बना लो, मैं फिर भी गुनाह माफ कर देता हूं। रब की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं एक जंग का मौका है, आप बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, एक औरत कैदी औरत है, कैद की गई। इमामुल अंबिया ने देखा भाग रही है, दौड़ रही है, इधर गई उधर गई, भागी दौड़ी, आखिरकार जाकर एक बच्चे को उठाया और उसको छाती से लगाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। इमामुल अंबिया ने सहाबा से सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा की जमात, क्या ये औरत, क्या ये वालदा, क्या ये इस बच्चे की माँ अपने इस बच्चे को आग में डालेगी, जहन्नम में फेंकेगी? सहाबा ने जवाब दिया, नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसा तो नहीं हो सकता। बच्चे की चाहत में, मोहब्बत में भाग रही थी, दौड़ रही थी, भागे जा रही थी, बच्चा मिला, दूध पिलाना शुरू कर दिया। कैसे हो सकता है कि अपने इसी बच्चे को जहन्नम में, आग में, जलस्ती आग में फेंक दे? हो नहीं सकता। इमामुल अंबिया फरमाते हैं ये तो एक माँ का माजरा है, मेरा रब तो इससे भी ज्यादा रहीम है, वो अपने बंदे को कैसे जहन्नम में फेंकेगा? एक माँ अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं कर सकती। जिस रब ने पैदा किया, 5-6 फुटा इंसान बनाया, बिन मांगे आंखें दी, कान दिया, जुबान दिया, नाक दिया, पांव दिए, हाथ दिए, सारी नवाजिमात बिन मांगे मेरे रब ने दिए। वो रब जिसने अपने हाथ मुबारक से, दस्ते मुबारक से तेरे और मेरे चेहरे को बनाया है, वो रब तुम्हें और मुझे कैसे जहन्नम में डाल सकता है? ये तो हमारी नाउमीदी है, मायूसी है, हम रब से नाउमीद हो चुके हैं। रब से माफी मांगे, रब जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल सकता है। रब की रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना उम्मीद वो लोग होते हैं जो गुमराह हो चुके हो, इल्ला ज़ाल्लून। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मेरी रहमत से मायूस ना उम्मीद वो लोग होते हैं जो गुमराह हो चुके हूं, जो भटक चुके हूं, जो बेराह रवी का शिकार हो चुके हूं, जो रब की रहमत का अंदाजा नहीं लगा सके, जो रब की रहमत को
जान नहीं सके, वही लोग रब की रहमत से ना उम्मीद होते हैं, मायूस होते हैं। बकिया जिसको भी पता हो कि रब की रहमत वसी है, वो ना उम्मीद नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना रहमती सबक़त मिन ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से सबकत ले गई, मेरी रहमत मेरे गुस्से से सबकत ले गई। क्या माना? जब जिस पर मुझे गुस्सा भी आ जाए, नाराजगी भी हो जाए, जब आकर मेरे सामने गिड़गिड़ाता है, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ जाती है, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, मैं अपनी रहमत से उस गुनहगार को माफ कर देता हूं। रब की रहमत, रब ने इमामुल अंबिया को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, और खुद अल्लाह रब्बे कायनात रहमत है, मंबा रहमत है। रहमत की वुसअत का अंदाजा कोई कर नहीं सकता। हिंदू मजहब के अंदर एक फिरका है आर्य समाज। आर्य समाज के समानी दयानत ने एक किताब लिखी और उसने कुरान मुक़द्दस की इसी आयत पर अर्रहमान अर्रहीम पर एतराज़ किया है, और उसने कहा है कि अल्लाह फरमाते हैं मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं रहमत वाला हूँ। ये रहमत कैसी कि वही रब अपने बंदों को हुक्म देता है जानवरों को ज़बह कर दो, ख़त्म कर दो, खा जाओ, पी जाओ। ये रहमत कैसी हुई? उसने एतराज़ किया, किस वजह से? क्योंकि वो गाय की परस्तिश करते हैं, उसको अपना माबूद मानते हैं, और हम मुसलमान गाय को कुर्बानी पर ज़बह करते हैं, वैसे भी खाते हैं। तो ये ज़बह करना, वो कहते हैं कौन सी रहमत है? उसने पैदा किया, फिर उसी ने अपने इंसान को कहा कि इसको ज़बह कर लो, खा जाओ। ये मुझे रहमत का पता नहीं चला। उसने कुरान पढ़ा ही नहीं है, उसने कुरान देखा नहीं है, खाली एतराज़ किया है। अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमिया, ऐ इंसान तू भटका हुआ है, पूरी कायनात की जितनी तख्लीकात हैं मैंने तेरे लिए की है। ये जानवर, ये चरिंद, ये परिंद, ये पूरी कायनात, आसमान और ज़मीन, इसकी तख्लीक की वजह इंसान है। इंसान भूला हुआ है। एक और जगह पर अल्लाह फरमाते हैं वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तालमून, कि मैंने घोड़े खच्चर बनाए और ऐसी ऐसी चीजें बनाई जिन्हें तुम नहीं जानते, और उनके बनाने की, उनकी पैदाइश का मकसद इंसान के लिए फायदा है। जब इंसान के लिए अल्लाह ने बनाए हैं तो उसी रब ने हुक्म दिया है ना इनको ज़बह करने का। लेकिन इमामुल अंबिया ने जब रहमत की बारी आई तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं इज़ा क़तलतुम, जब तुम किसी चीज़ को कत्ल कर रहे हो, फ़अहसिनुल क़ितलता, दुश्मन के साथ लड़ भी रहे हो ना, असली दुश्मन है, काफिर है, बदअकीदा है, तेरे और तेरे सामने आकर मैदान जंग में साफ बांध के खड़ा है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं जब उसके साथ लड़ रहे हो, उसको मार रहे हो, फ़अहसिनुल क़ितला, मारना भी आसान अंदाज में है, मुसला नहीं करना, आज़ा नहीं काटने, ये है रहमत। वइज़ा ज़बहतुम, और जब तुम किसी जानवर को ज़बह करो, आसिनु ज़िबहतहु, तो ज़िबा भी अच्छे तरीके से करो। और इसी हदीस में इमामुल अंबिया फरमाते हैं छुरी को तेज़ कर लो, अगर छुरी तेज़ ना हुई तो जानवर को तकलीफ हो सकती है, तकलीफ से बचाना है। ये रहमत है मेरे रब की, जो रब ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बयान करवाई। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, मिल्कियत उसी की है, अमर उसी का चलता है, मुदब्बिर और मुतसर्रिफ़ुल अम्र वही है। कौन रब? अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमत वाला है, जो रहमान है, जो रहीम है। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया अमल पैरा होने की तौफीक दे। हादा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह अगले जुमा इससे अगली आयत की तफसीर बयान करेंगे।